FTO का रोल आप कैसे देखते हैं in terms of providing a relief, in terms of providing the justice which is required? جب سے ڈاکٹر آصف صاحب آئے ہیں تب سے FTO کا پرسیپشن بالکل چینج ہو گیا ہے. بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس پہلے سے بہت زیادہ آ گیا ہے. پہلے جو ہم بار بار گلہ کیے کرتے تھے کہ ہماری سنوائی کوئی نہیں ہے, ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے, ہماری پہنچ کہیں نہیں ہے. ہماری اب ہر ڈپارٹمنٹ میں پہنچ ہے, ہماری ہر ڈپارٹمنٹ میں سنوائی ہے. تمام اختیارات جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, ٹیکس پیئر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اب شاید ہو گیا ہے FTO کی وجہ سے. FTO کے پورے ڈپارٹمنٹ کو یہ اویئرنیس دینی ہے تمام بزنس کمیونٹی کو کہ وی آر ہیئر فار یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو FTO TV. فیڈرل ٹیکس امبورسمنٹ کا ایک انیشیٹو جس کا آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو بڑے پیمانے پہ اکراس دی پاکستان آن بورڈ لیا, اور جو بزنس کمیونٹی کے زبردست لیڈرز ہیں ان کو ہم نے فیڈرل ٹیکس امبورسمنٹ اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایز اے بزنس کوآرڈینیٹر آنری ایڈوائزر کے طور پہ ہم نے لیا. اور آج جو لیٹسٹ انڈکشن ہے وہ جناب کاشف انور صاحب کی ہے, جو کہ LCCI کے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور فینانس اور ٹیکسیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ہیں فرینڈس آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارم کے. یہ ایک بڑا زبردست ایڈیشن اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آؤٹ ریچ ود اے اسٹرینتھ بزنس کمیونٹی تک پہنچے گی, اور بزنس کمیونٹی میں چونکہ یہ بہت پاپولر ہیں تو ان کی ریپریزنٹیشن FTO میں بہت افیکٹولی ہو سکے گی. میرے مہمان ہیں, آج ہی ہم نے ان کو اپوائنٹ کیا. کاش بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں ریگارڈنگ میل ایڈمنسٹریشن آف دی FBR آفیسرز, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کے پاس بے شمار آپ کے کولیگس آتے ہوں گے, بزنس کمیونٹی کے باقی لوگ جو ہیں. FTO کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ FTO کا رول in terms of providing a relief, in terms of providing the justice which is required, اس کو FTO کے رول میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر آصف محمود جاز صاحب آپ کا FTO ڈپارٹمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ FTO اور FBR اور بزنس کمیونٹی, جی پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے ڈاکٹر آصف صاحب آئے ہیں تب سے FTO کا پرسیپشن بالکل چینج ہو گیا ہے. بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس پہلے سے بہت زیادہ آ گیا ہے. پہلے جو ہم بار بار گلہ کیے کرتے تھے کہ ہماری سنوائی کوئی نہیں ہے, ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے, ہماری پہنچ کہیں نہیں ہے. ہماری اب ہر ڈپارٹمنٹ میں پہنچ ہے, ہماری ہر ڈپارٹمنٹ میں سنوائی ہے. تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ پتہ ہے, چاہے وہ کسٹمز ہو, چاہے وہ FBR ہو, چاہے کوئی اور لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہو, انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ناجائز طریقے سے کسی بھی بزنس مین کو, کسی بھی ٹریڈر کو, کسی بھی انڈسٹریسٹ کو تنگ کریں گے تو یہ ہماری کمپلینٹ لے کے FTO صاحب کے پاس چلے جائیں گے, اور FTO ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں لیٹر بھیج دے گا. سو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اب ہماری سنوائی ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے میل ایڈمنسٹریشن کی, جو آپ نے ڈپارٹمنٹ کی بات کی, تو دیکھیں میں اس کے متعلق ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, ٹیکس پیئر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اب شاید ہو گیا ہے FTO کی وجہ سے. لیکن میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں اور میری گزارش ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پلیز ٹیکس پیئر کو اختیار دیجیے, ٹیکس پیئر کو عزت دیجیے. ٹیکس پیئر کے ساتھ جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں ہم پہلی بات تو یہ کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف, وی آر پاکستانیز, اٹ از اوور ڈیوٹی ٹو پے ٹیکس. ہمیں ٹیکس پے کرنا چاہیے, ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے. لیکن جو ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں وہ نہیں آتے, اور چونکہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے ان کی سنوائی نہیں ہے, ان کی پہنچ کہیں نہیں ہے, ان کی دسترس کوئی نہیں ہے. میں کاشف بھائی یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے پاس اختیارات نہیں, لیکن
फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन में हम ये कहते हैं कि हम टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जितने इख्तियारात हैं वो टैक्स पेयर के इख्तियारात हैं। जहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन है और हम FBI को पूछते हैं तो हम टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेटिव बन के, वकील बन के हम उसके केस को लेके चलते हैं। तो इन अ वे गवर्नमेंट ने एक ये सिस्टम इवॉल्व किया थ्रू हैविंग दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन कि हम उस टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि लेकिन ये रिसेंटली हुआ है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना अवेयरनेस का, हमें आपको FTO के पूरे डिपार्टमेंट को ये अवेयरनेस देनी है तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कि वी आर हेयर फॉर यू। अच्छा, मुझे बताएं, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ रोड मैप अवेयरनेस के हवाले से आप क्या करेंगे और आप और हम मिल के क्या करेंगे ताकि बिजनेस कम्युनिटी को और जनरल पब्लिक को FTO के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो। देखिए, जब से डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने तमाम चैम्बर्स में जाकर, फेडरेशन में जाकर ये बताना शुरू किया है कि हम आपके लिए हैं, लोगों में आगाही आई है। और जब किसी भी हम बिजनेसमैन का कोई ऐसा इशू रिज़ॉल्व करवाएंगे और उसकी तशहीर करेंगे, देखिए आजकल तो जो सबसे आसान मीडिया है वो आपके फेसबुक है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और जैसे ही किसी के साथ कोई बुराई या अच्छाई होती है वो फ़ौरन व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर देता है। तो अल्टीमेटली जब हम किसी बिज़नेस कम्युनिटी के किसी बंदे का कोई ऐसा इशू रिज़ॉल्व करवाएंगे, उसकी तशहीर करेंगे, बताएंगे कि FTO ने ये हमारा काम किया है। हम देखें, मैं आपके इस प्रोग्राम के इस इंटरव्यू के तवस्सुत से ये अपनी तमाम सुनने वालों को कहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम किसी बिज़नेस पर्सन को है, उसके टैक्स से रिलेटेड, किसी और मैटर से रिलेटेड, दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द बिहाफ ऑफ द FTO, आई विल कम टू यू, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके इशू को आप तक पहुँचाया जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं काशिफ कि हम कंपैरिजन मैं थोड़ा सा आपसे करवाना चाह रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को जब कोई प्रॉब्लम होता है तो एक प्लेटफॉर्म ये है उसका कि वो हाई कोर्ट में जाता है, विद इन डिपार्टमेंट आपका एपलेट फोरम मौजूद है, और फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप वहाँ पे उसको इन्वोक ना करें, FTO पे आ जाए। कंपैरिजन मुझे बताएं इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन टाइम, जो जितनी जल्दी हम फैसला करते हैं या देर से करते हैं, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन कंपेयर इट विद द अदर इंस्टीट्यूशन। ये मैं आपसे कंपैरिजन। अलमाज साहब देखें, सबसे पहले जब आपकी असेसमेंट हो रही होती है तो असेसमेंट ऑफिसर बग़ैर किसी खौफ व ख़तर आपके ख़िलाफ़ असेसमेंट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलत असेसमेंट पे भी उससे कोई नहीं पूछेगा। फिर हमें क्या करना है, हमें कमिश्नर अपील पे जाना है, कमिश्नर अपील का फ़ैसला भी हमारे खिलाफ होगा, फिर हमें ट्रिब्यूनल में जाना है। ट्रिब्यूनल में आप 2 दफ़ा स्टे ले सकते हैं 2 महीने के लिए, उसके बाद आपका बैंक अटैच हो जाएगा। अब बात यह है कि इस प्रोसेस में 6 महीने हो गए, आपका इनकम टैक्स भी आपका ब्लैक हो गया, जो आपका NTN है, आपका सेल्स टैक्स भी आपका नॉन एक्टिव हो गया, आपका बैंक भी अटैच हो गया, आप चलेंगे कैसे? अब बात यह है कि अब आप इसी को अगर आप FTO के साथ कंपेयर करें, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैंने अगर मेरी असेसमेंट हो गई है तो मैंने 1 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर अपील के पास जाना है। वाई शुड आई गो टू कमिश्नर अपील, आई शुड गो टू FTO। मैं पहले FTO के पास जाऊँगा कि देखिए मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर मेरा काम हो ही 10 दिनों के अंदर जाता है कि भाई अगर असेसिंग ऑफिसर ने नाइंसाफ़ी की और अगर आप यही सवाल पूछ लें उससे कि यार देखो ये असेसमेंट तो तुमने सीधी गलत की है, सिर्फ रेवेन्यू के लिए की है, और आपको भी पता है कि जो FBR की असेसमेंट्स होती हैं वो रेवेन्यू के लिए होती हैं। और एक और बात, आपने हाई कोर्ट का कहा, हम ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं। हाई कोर्ट से फैसला ये आता है कि असेसिंग ऑफिसर ने फैसला गलत किया है। अब मेरा FTO डिपार्टमेंट से एक ये सवाल है, उस असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्या होता है? मैं इस पर थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, चूँकि असेसमेंट जो है और एवेल्यूएशन जो है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में जो तकलीफ दी जाती है, जो अजियत दी जाती है, जिस एग्नी से एक टैक्स पेयर गुजरता है, वो डेफिनेटली मेल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और वहाँ पे हमारी जुरिस्डिक्शन बहुत पावरफुल है। अगर किसी शख्स को जिसने आपको मिस हैंडल किया है और उस पूरे प्रोसेस में आपको एक अजियत और एग्नी से गुजारा है, डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग जहाँ पे हम अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल हम यही चाहते हैं। देखें, हम ये नहीं चाहते कि आप हमें इख्तियार दे दें, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारे बिहाफ पे कोई आवाज़ तो उठाए। अब मुझे ये बताएं,
फाइनली कि लाहौर के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, आपने यू बीइंग न्यूली अपॉइंटेड बिजनेस कोऑर्डिनेटर, आपसे वो इजीली राब्ता कर सकते हैं, चेंबर में कर सकते हैं, आपके जो बाकी देखें जी, इससे पहले भी एज अ प्रेसिडेंट फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स मेरा टेलीफोन 24/7 खुला होता है और मैं कहता हूँ कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वॉइस मैसेज भेज दें, आई माई सेल्फ विल कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू सो मच, और एक मरतबा फिर बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। हम भी यहाँ पे फेडरल टैक्स एम्बोर्समेंट जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब का फ़ोन भी 24/7, और लोग अक्सर ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता था माजी के एम्बोर्समेंट तक पहुँचना, और यहाँ तो हम उनको कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में आए तो ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू मीट यू एंड ग्रीट यू। तो ये एक अप्रोच है जो वफाकी टैक्स महोत्सव में हमने अडॉप्ट की है। हमारे तमाम एडवाइज़र्स आपके लिए अवेलेबल हैं, हमारे बिजनेस कोऑर्डिनेटर आपके लिए अवेलेबल है। आपका कोई इशू है, नेवर हेजिटेट, कम फॉरवर्ड, और हम आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू सो मच।